व्हाट बेटे? सुनाई नहीं दिया मुझे. व्हाट आर यू सेइंग? जिस साइड आपकी मम्मा बैठी है उस साइड को मुड़ के बोलो. आई कांट हियर यू. आरव यू. हाँ बोलो. मेरे को आपकी कुछ बात समझ नहीं आ रही आज. आरव अपने आप को म्यूट करो. आरव खाली 3 ही बच्चे आए थे. अब क्या करें, 3 ही आए हैं तो. वो गर्ल्स को शायद सब कुछ आता है, नहीं आ रही तो नहीं आने दो. आप लोग रिवाइज करो. कल आए थे, आज नहीं आए. उनको इंग्लिश लगता है हमें आती है शायद. अरे कोई आ गया, कोई तो आ गया. समवन वॉन्ट्स टू ज्वाइन द कॉल. ऋषिता आ रही है. ऋषिता लास्ट टाइम भी नहीं आई थी, इस बार ही आई है. अब क्या कर सकते हैं. और सन्विका नहीं आई है. कल आए थे, आज नहीं आए. इनको लगता होगा इंग्लिश अच्छे से आती है इन्हें, इसलिए नहीं आते, इसलिए एब्सेंट हो जाते हैं. हाँ ये किया हुआ है, म्यूट करो. इसके आगे करेंगे. हाँ तो फिर क्यों नहीं भेजा काम. म्यूट करो, म्यूट करो आरव. आप बहुत जल्दी से बार बार अनम्यूट कर लेते हो, फिर डिस्टर्बेंस होती है. इसीलिए मेरे को वारेनियम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी शायद. ओके, तो आप अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे फॉर पोजेसिव नाउन्स. ऋषिता, डू यू नो व्हाट पोजेसिव नाउन्स आर? Rishita, what are possessive? So why do you miss your classes then, बच्चे? Okay, Ashutosh, explain what are possessive nouns. मैम पोजेसिव नाउन्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज किसी से बिलोंग करती है. Nouns which tell us what belongs to whom, है ना? So this is Anjali's cup, and what is the rule for that? I'll just show you what Ashutosh has written, and from there we'll proceed. ओके ऋषिता, इसको देख के समझने की कोशिश करो. रीड दी सेंटेंसेस क्विकली. रीड देम ऋषिता. This is Natasha's skirt. इसमें हमने क्या किया है? Whose, to whom does the skirt belong to? Natasha. हाँ, so how have we shown that it belongs to Natasha? What did we do? Comma and S. We see today Furkan has also come, and Sanvika bhi. We put an apostrophe S after Natasha. वो फुरकान है, वासीकरम पटेल. म्यूट करो. मैम ये तो पूरा संका. सानविका भी आई है और फुरकान भी आया. अरे कहाँ गया फुरकान? Furkan had come, I don't know where he is. Never mind, he'll come again. Okay, so we are going through these. So this is Natasha's skirt. So possessive noun kaun sa? Natasha's. That's what we have underlined. Ki the skirt belongs to Natasha. Read the second sentence, Sanvika. You were also absent. Read it. Read the second sentence. सानविका म्यूट करके रीड करो. ऋषिता यू म्यूट. This is Tom's hat. This is Tom's hat. What does this sentence mean? It means that ये Tom का hat.
हाँ, the hat belongs to Tom. How do we show it belongs to Tom? By putting an apostrophe S. Okay? Okay. Next one, Rishita, read again. This is Dan's photograph. This is Dan's photograph. Whose photograph is it? Dan. So, how are we showing that? It is Dan's. So, एक चीज़ का ध्यान रखना है, whenever we are pronouncing it, हमने बोला अभी जैसे, let's go to the next first. Arav, read this. Read this. This is Mickey's hat. Cat. So, whom does the cat belong to? Mickey. Okay, so the possessive noun is Nicky's. Okay, Nicky's. हम क्या बोलेंगे? We will not say Nicky hat. Nicky's hat, Dan's hat, Tom's hat, Natasha's hat. And the last one, Sanvika, read this. नहीं, Sanvika नहीं, Varanium. Read this. Number 5. Varanium, read it. Varanium, read it. पता नहीं क्या करते हैं सब बच्चे. चलो ऋषिता आप ही पढ़ो. आप म्यूट करो ऋषिता को पढ़ने. ऋषिता, read it. The cat dishes. हाँ, इसमें एक मिस्टेक है बेटे, ये डी स्मॉल होना चाहिए आशुतोष. ओके, इट कैनॉट बी डिशेज लाइक दिस, इट हैज टू बी डिशेज. ओके. Okay, now the next one, cat, cats and cats. अगर हम देखें what cats और cats दोनों की pronunciation same है, तो हम जब बोल रहे हैं तो it is the same. cats ही बोलेंगे और cats भी बोलेंगे, पर लिखने में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन प्लूरल कैट्स, बिकॉज CATS cats is plural, CAT cat is singular, and this cats, this also is singular, but we are calling it cats. So how do we differentiate? By writing using an apostrophe S. बोलने में we say the same thing, cats, cats. Okay? Is this understood, everybody? ये सबको समझ आया? Yes, ma'am. Okay. Now mute everyone. Yes, ma'am. Okay, mute everyone. Now we have to see. Now, what will we see? A little more about possessive nouns, and then we'll do an exercise. बस easy है, very easy peasy. Okay? Tom's hat हो गया. अब हमने read this. Who's done? आशुतोष. हाँ. We add an हाँ. समझो. we add an S to make a singular noun possessive. Okay. Cat, boys, toms. हाँ. Cats, boys, toms. So we use an apostrophe S. Okay. Okay, ma'am. Now we have to also see how do we show possession for plural nouns. Now, so that we'll see now. So Varanium's turn. अभी इसको पढ़ो. Read this. Which is Which broom. हाँ, the witch's broom. So इसमें
Is which singular or plural? Which is में अगर अभी यही बताया मैंने, अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब पोजेसिव नाउन है, और पोजेसिव ओके, और पोजेसिव नाउन सिंगुलर। वेट, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, अगर अपॉस्ट्रोफी एस के पहले सिंगुलर है तो हमने क्या बोला, ये विच सिंगुलर है। ओके, क्या है ये? Singular. हाँ, तो क्या है वारेनियम? Singular. दिस, सो विच। अच्छा, नाउ वारेनियम, टेल मी व्हाट इज द प्लूरल ऑफ विचेस? विच का प्लूरल क्या है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखो, Witches. स्पेलिंग बताओ। WITCH, विच। W I T W I T S हाँ, विचेस की क्या स्पेलिंग हुई? वेरी गुड, विचेस। और हमने अभी क्या बोला, तो इसका मतलब है प्लूरल विचेस का क्या है, ES लगाने के बाद। मगर अगर हमने विच अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो ये क्या बन गया, विच सिंगुलर है, और क्या है ये, सिंगुलर पोजेसिव नाउन। कौन सा नाउन है? Singular possessive noun. वेरी गुड, राइट इट डाउन। और विच तो सिंगुलर नाउन है, इसमें कोई पोजेशन नहीं है, है ना, सिंगुलर। और विचेस क्या है, प्लूरल है। नाउ वी हैव टू सी हाउ विल वी मेक दिस विच इज पोजेसिव, वो समझना है अब हमने। ओके, प्लूरल विचेस जो है उसको पोजेसिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि विचेस ही है। The witch's broom. We add only an apostrophe. रीड दिस, क्या नाम है, आरव। रीड इट। We add only and to make एंड अपॉस्ट्रोफी, बेटे अपॉस्ट्रोफी कौन पढ़ेगा, ये अपॉस्ट्रोफी भी, एड ओनली एन अपॉस्ट्रोफी। and an apostrophe to make a plural noun ending in s, comma, possessive voice, apostrophe dog, apostrophe dollar. हाँ, ये कॉमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी ज़रूरी किस लिए बोलना था, क्योंकि हमने किसी के साथ नहीं लगाया, अलग से अपॉस्ट्रोफी लिखा है। कॉमा तो हमने एस के बाद लगाया इन कंटिन्यूएशन विद द सेंटेंस। ओके, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जो भी, हाँ बोलो बोलो आरव, एक्सप्लेन इट टू मी। हम लोग ओनली ऐड कर सकते हैं प्लूरल नाउन के एंडिंग में इन पोजिटिव डॉग और समझ नहीं आया आपको अभी तक समझ नहीं आया हमने क्या बोला। ओके, नाउ जस्ट टेल मी आरव, व्हाट इज दिस BOYS? बॉयज क्या होता है, BO? अच्छा, मेरे को आप ये बताओ, मैं अभी एक और, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बॉय का सिंगुलर क्या है, बॉय का सिंगुलर सिंगुलर बॉयज है, प्लूरल बॉयज है। ओके, और अगर हमने ये सिंगुलर है, अगर हमने सिंगुलर बॉय को
पोजेसिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? apostrophe डालो बताओ, स्पेलिंग बताओ, कैसे लिखूं? POY हाँ apostrophe हाँ, X वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर पोजेसिव। हाँ, वेरी गुड, सिंगुलर पोजेसिव नाउन। अब मेरे को बताओ, अब हमने अगर बॉयज प्लूरल को हमने वो बनाना है पोजेसिव, तो हम क्या करेंगे? ये तो बॉयज है, अब हम कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे? फिर से पढ़ो ये सेंटेंस, कहाँ लगाएंगे? किसी ने रेज किया है। S के पहले एस के पहले लगा हुआ है, देखो कहाँ लगा है? S के बाद लगाओ हाँ, एस के बाद। अगर पहले लगाएंगे तो वो तो सिंगुलर बन जाएगा। हमने और प्लू बाद में लगेंगे तो प्लूरल के बाद में अगर वो एस से एंड होता है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते उसके साथ। ओके, तो लिखो यहाँ पे, जैसे अभी मैं पूछती हूँ, तो बॉयज हमारा अपॉस्ट्रोफी लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लूरल पोजेसिव। ओके, और बॉयज BOYS बॉयज जो है ये है प्लूरल। चलो अब मेरे को नेक्स्ट किसकी है? ऋषिता। ऋषिता, टेल मी विच इज, अगर है हमारे पास, ये तो प्लूरल है, इसको अगर हमने वही बोला, जो भी प्लूरल वर्ड्स एस से एंड होते हैं उसका रूल बताया, तो विच इज का पोजेसिव कैसे बनाएंगे? बताओ, विच इज के प्लूरल में कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्या होगा? S के बाद apostrophe S लगेगा फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। फिर से ये रीड करो। ओके, म्यूट करो। चलो सान्विका, रीड दिस। सान्विका, रीड दिस पेज अगेन। जब मैं सान्विका को बोलती हूँ पढ़ने के लिए, वो चुप हो जाती है। हाँ, We add only an apostrophe to make a plural noun ending in S apostrophe possessive. अपॉस्ट्रोफी का इन एस पोजेसिव, क्या मतलब हुआ? नहीं, मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? इसका मतलब हुआ कि हम प्लूरल नाउन बनाने के लिए पोजेसिव नाउन एंड में ऐड करते हैं। नहीं बेटे, चलो म्यूट करो। लेट मी आस्क आशुतोष, रीड इट। लेट मी सी विच ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। We add only an to make एंड अपॉस्ट्रोफी, to make a plural noun and ending in s possessive. हाँ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसमें इसका मतलब है कि हम लोग खाली अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं कोई प्लूरल नाउन के एंडिंग के बाद उसे पॉजिटिव बनाने के लिए। एब्सोल्युटली राइट। सो हमने क्या किया? हमने प्लूरल नाउन जो कि एस से एंड होते हैं, ऑल प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस, ये ध्यान रखना है। हाँ, इधर सान्विका, इधर ध्यान दो। जो भी प्लूरल नाउन्स एस से एंड होते हैं, सारे प्लूरल नाउन्स एस से एंड नहीं होते, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जो भी प्लूरल नाउन्स एस से एंड होते हैं उनके बाद खाली अपॉस्ट्रोफी लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ये समझ आया? सबको समझ आया ये बात? Yes, ma'am. अच्छा, अभी मैं एग्जाम्पल्स पूछूंगी, फिर गड़बड़ मत करना। ओके, अब मुझे बताओ वारेनियम,
विचेस को प्लूरल विचेस को विचेस तो वैसे ही प्लूरल होता है, इसको पोजेसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बस सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस है। हाँ, वेरी गुड, पोजेसिव। चलो अब मैं वारेनियम के बाद किसकी टर्न है? आरव। आरव आरव हाँ, मैंने ये वर्ड लिखा है, इसका पोजेसिव कैसे बनेगा? Dog का singular positive के plural positive. मैंने डॉग लिखा है, उसका पोजेसिव बताना है। आपको खुद सोचना है कि डॉग सिंगुलर है या प्लूरल है और उसका कैसे बनेगा, आप बताओ। Apostrophe S. तो मैं डॉग, इसको पढ़ो, क्या है ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या वर्ड बनाई है? ये बना singular positive. वर्ड तो पढ़ो। हाँ पढ़ो, सिंगुलर डॉग्स, वेरी गुड। अब मैं आरव, आप ही की टर्न चल रही है। मैंने ये वर्ड लिखा है, ये क्या है? इसको Dogs है. हाँ, ये भी डॉग्स है, ये क्या है? ये पोजेसिव है? ये dogs के बाद नहीं, ये है क्या? पहले लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज इट? इज इट सिंगुलर? इज इट प्लूरल? इज इट अ पोजेसिव नाउन? plural. It is plural. So it is plural. Now how do I make it possessive? मैम इसके एस के बाद apostrophe लगेगा. और एस भी लगाओ। प्लूरल पॉजिटिव नाउन बन जाएगा. Very good. Plural possessive noun. Very nice. Now I am writing another word for Rishita. Rishita, I have written a word. What is it? Girl. Girl. Is it singular, plural, possessive? What is it? Singular. Singular. Now if I have to make it possessive, how do I make it? What? Apostrophe S. Tell me the spelling. GIRL apostrophe S. हाँ. What? How do we pronounce it? क्या बोलेंगे? Girls. Girls. Very good. So it makes it singular, possessive. Is your result out? English का Sanvika and Rishita, how many marks have you got? How many marks did you get, Rishita? Ma'am, 20 out of 19. 19 out of 20. क्या mistake हो गई? So what is the plural of girl? Very good. हाँ. एक मैंने synonym में गलती करती. अच्छा, कोई बात नहीं. ओके, अभी बताओ, what is the plural of girl? Tell me, Rishita, it's your turn only. यार. हाँ. What is the plural of girl? Girls. Spelling? GIRLS. Very good. So this is plural. Now how do I make it possessive? GIRLS apostrophe. Very nice. So this becomes a plural possessive. Now, next turn is Sanvika's. Sanvika, I have written a word. What is this word? Is it Cat. is it singular, plural, possessive? What is it? Ma'am, singular. Singular. If I want to make it
possessive, how will I make it? How will I show? C-A-T-S, cats. Is this possessive? Ma'am, this is plural. This is plural. I am asking you, how do I make it possessive? Ma'am, C-A-T-S-E apostrophe S. Very good. So it makes it singular possessive. Now if I have to write the plural, what is the plural of cat? Cats. Tell me the spelling. C-A-T-S. बस कहीं apostrophe नहीं लगेगा? No, ma'am. Okay. Now if I have to make this plural possessive, how do I make it? Ma'am, C-A-T-S apostrophe. Very nice. तो अब सबको समझ आ गया ये, right? तो any plural noun which ends in s, उसमें सिर्फ apostrophe लगता है, right? Okay. Now let's go ahead and we'll see those nouns which do not end in s. उनको हम apostrophe कैसे लगाते हैं? उनको possessive कैसे बनाते हैं? How do we make the plural nouns not ending in s possessive? To make a plural noun ending in s possessive. For example, we add an apostrophe s. Okay, next. Varanium will read this. Read this. Yes. We add an S to बेटे पहले apostrophe है उसके बाद s है. S apostrophe नहीं, apostrophe s. फिर से पढ़ो. apostrophe S to a plural noun. Then don't not end in S to make it consonant. तो मतलब क्या हुआ इसका? We add an apostrophe s to a plural noun. तो जैसे हम सिंगुलर को बनाते हैं वैसे प्लूरल जो एंड s से एंड नहीं होता है उसके बाद भी हम apostrophe s लगाते हैं. Okay? Let's go ahead a little. To make it possessive. For example, the कितने डेयर्स हैं? पढ़ो इसको. क्या नाम है इसका? वारेनियम. हाँ पढ़ो. देखो कितने डेयर्स हैं. कितने डेयर्स? 2. हाँ 2 डेयर्स हैं. तो हमने क्या किया? अब पहले मुझे ये बताओ कि डेयर का सिंगुलर क्या होता है? कौन बताएगा? Deer का सिंगुलर. हाँ Deer का सिंगुलर होता है deer. डेयर. और प्लूरल? One deer. वेरी गुड. तो अब हमने शो करना है कि ये अब इसको ये सिंगुलर है. ओके. और इसका पोजेसिव कैसे बनेगा? First of possessive. पहले apostrophe लगाने के बाद S. हाँ बताओ स्पेलिंग. Ma'am, deer. डेयर Apostrophe S. apostrophe s. तो ये क्या बन गया? सिंगुलर पोजेसिव है ना. ये तो सिंगुलर पोजेसिव बन गया. मगर अब हमको क्या करना है? इसका प्लूरल बताओ. इसका plural तो वही होगा deer. डेयर ही होगा. डेयर ही होता है इसका प्लूरल. इसका डेयर्स नहीं होता. और इसलिए इसका पोजेसिव भी क्या होगा?
ये एस से एंड नहीं हो रहा इसका प्लूरल, तो फिर क्या होएगा पोजेसिव प्लूरल का? एस से तो एंड नहीं हो रहा है, तो कैसे बनाओगे इसका पोजेसिव? कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई कोई ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। बताओ कैसे कैसे बनेगा, बताओ वारेनिया, परेशान मत हो। हाँ बताओ। ये एस से एंड नहीं हो रहा है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा? रूल क्या है? जब एस से एंड नहीं हो रहा है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस ही लगाते हैं। ओके, समझे? चलो अब वारेनियम बंद करो। आशुतोष बताओ। इस नहीं बेटे, प्लूरल डियर ही होता है। मैम जब डियर होता, मैम जब कोई भी प्लूरल को पोजेसिव बनाना होता है और इसमें एंड में एस नहीं होता, तो हम अपॉस्ट्रोफी उल्टा लगाते हैं। उल्टा लगाते हैं मतलब? मैम मतलब अभी अपॉस्ट्रोफी मैम मैम ये वाले पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, मैं अभी कमेंट। नहीं बेटे, ये देखो ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये देखो उल्टा उल्टा कुछ नहीं लगाते हैं, सीधा ही लगाते हैं और अपॉस्ट्रोफी ऐसी लिखते हैं। ये देखो, ओके, अपॉस्ट्रोफी ऐसी होएगा। ये बाय चांस कोई 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 वर्ड होता है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमारे प्लूरल जो हैं वो एस से एंड नहीं होते। तो जो एस से एंड नहीं होंगे उनके बाद हम अपॉस्ट्रोफी और एस ही लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस। हाँ, टीथ भी तो होता है, उसमें एस नहीं होता है एंड में, और वो प्लूरल होता है। हाँ, तो जब हमने पोजेशन शो करनी है तब हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ना बेटे। हम कोई प्लूरल बनाने के लिए नहीं कर रहे, अभी हम करेंगे वो वाले सारे एग्जाम्पल। चलो वही वाला अभी एग्जाम्पल करेंगे, पर पहले ये तो ये डेयर्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। तो डेयर के केस में प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होते हैं, इसलिए दोनों ही सेम ही लगेंगे। लिखते जाओ। अभी हम आपने जो एग्जाम्पल दिया वो वाला लेते हैं। आपने बोला टूथ, TOOTH, टूथ। क्या है ये आशुतोष? व्हाट इज इट? सिंगुलर, प्लूरल, पोजेसिव, व्हाट इज इट? सिंगुलर। सिंगुलर। एंड इसको पोजेसिव बनाना हो तो क्या बोल करेंगे? टीथ। टीथ। टीथ, टीथ पोजेसिव होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्लूरल क्या है टूथ का? टीथ। हाँ, टीथ प्लूरल है, राइट। अब मैं कह रही हूँ टूथ को पोजेसिव बनाओ। टूथ को पोजेसिव कैसे बनेगा? बोलो। हम लोग टीथ के एंड में बेटे टीथ क्यों ला रहे हो आप? अभी मैं टूथ का पूछ रही हूँ। मैं बोल सकती हूँ टूथ्स, टूथ का कैप है, टूथ्स कैप, टूथ्स रूट, टूथ्स एनामल। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दांत की भी, उसका एनामल होता है, उसका रूट होता है, उसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं, उसका कलर भी हो सकता है, किसी के येलो हो जाते हैं, किसी का वाइट ही रहता है। तो टूथ्स, तो अब हमने टूथ्स कैसे लिखना है वो बताओ। सिंगुलर, एक दांत का। मैम टूथ और अपॉस्ट्रोफी एस। हाँ, तो ये कौन सा बन गया? सिंगुलर, पोजेसिव। हाँ, पोजेसिव और प्लूरल में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब इसका प्लूरल बताओ आशुतोष। मैम टूथ का प्लूरल टीथ। ओके, टीथ। अब इसका ये प्लूरल है, अब इसका वो बताओ पोजेसिव। टीथ हम्म,
apostrophe s. वेरी गुड. टीथ्स एनिमल मतलब एक से ज्यादा टूथ की बात कर रहे हैं. प्लूरल पोजेसिव. ओके. Okay, ma'am. कंफ्यूज नहीं होना. तो अब इधर हमने क्यों प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस लगाया? क्योंकि ये एस से एंड नहीं हो रहा है, एच है. चलो अब एक और पूछती हूँ. आरव आपकी बारी. मैंने ये एक वर्ड लिखा है. मैम हाँ बोलो. मैम लीव्स का भी ऐसे ही होगा. हाँ अभी पहुंचेंगे हम उस पे भी. हाँ अभी एक एक वर्ड करती हूँ, हर एक से पूछूंगी अभी. मैम चाइल्ड का हाँ क्या है ये? व्हाट इज इट? सिंगुलर है. वेरी गुड. और इसका पोजेसिव कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव चाइल्ड का apostrophe s. हाँ Child. चाइल्ड के बाद अपोस्ट्रोफी एस. तो ये सिंगुलर पोजेसिव बन गया. Possessive noun. हाँ अब मेरे को बताओ इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल चिल्ड्रन होता है. हाँ वेरी गुड. याद है आप लोगों को? चिल्ड्रन. और ये है प्लूरल. और इसका पोजेसिव कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव चिल्ड्रन लिख के s लिख के apostrophe. नहीं, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए किससे एंड हो रहा है ये? एन से. Apostrophe लगेगा बस. नहीं बेटे, अगर एस एंड में होता तब अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगता. क्योंकि ये एस में एंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? चलो अगला Apostrophe s. हाँ तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा. और ये प्लूरल. अभी मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी सबको. प्लूरल पोजेसिव. ओके. तो क्या है? चिल्ड्रंस. ओके. अब जैसे आशुतोष ने अभी एक और बोला. इसने क्या बोला? नेक्स्ट किसकी टर्न है? ऋषिता. ऋषिता बताओ ये क्या लिखा है मैंने? Leaf. हाँ क्या है ये? What is singular? हाँ don't be confused. Very good. इसका possessive कैसे बनेगा? इसमें LEAF apostrophe s. Very good. और इसका plural क्या होता है? Leaves. Spelling? L हाँ LEAVES. हाँ. Leaves. Very good. So this is the plural. इसका possessive बनाओ. LEAVES apostrophe. Very good. क्यों इसमें सिर्फ apostrophe लगा? क्योंकि ये प्लूरल है. नहीं, प्लूरल किस चीज से एंड हो रहा है? S से. एस से एंड हो रहा है. जो प्लूरल एस से एंड हो रहा है उसको हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. यहाँ पे टीथ प्लूरल था, एस से एंड नहीं हो रहा था, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया. चिल्ड्रन एन था इसलिए, और प्लूरल है चिल्ड्रन, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया. ओके. अब मैं एक लास्ट पूछ रही हूँ, फिर मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी. बहुत इजी सी ट्रिक बताई है उसमें सब. ये अब सान्विका. सान्विका अब मैं बोल रही हूँ मैन. क्या है ये? Ma'am, singular. वेरी गुड. दिस इज सिंगुलर. व्हाट विल बी द पोजेसिव फॉर मैन? Ma'am, AN apostrophe S. Very good. So singular possessive. What is the plural of men? Man. Huh? Men. Spelling? MEN. Very good. आप बच्चे तो बहुत अच्छे हो, सबको याद है. Men. So this is the plural. And so how will we show its possession? Possessive कैसे बनाएंगे? Ma'am, MEN apostrophe. सिर्फ apostrophe.
क्या होएगा? मैन के बाद क्या लगेगा? चलो एवरीबडी रेज योर हैंड, मैं देखती हूँ कौन मेरे को जवाब देगा। दिस इज द प्लूरल। हाँ बताओ आरव, आपने आपने S. हाँ क्या लगना चाहिए इसमें? ये कौन शोर मचा? बताओ बताओ, हाँ बताओ आरव, बताओ क्या बता रहे हो? apostrophe S लगना चाहिए, S लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैन apostrophe मैन के बाद फाइनल से ही होता है। नहीं बेटे, मैंने तो ये ओके मैंने ये ऐसे नहीं लिखा, ये तो मेरे को सान्विका ने बोला था अपोस्ट्रोफी लगाने को। वेट वेट, हाँ बताओ। मैम क्योंकि इस ये जो है ये प्लूरल है और इसके एंड में एस भी लगा, इसलिए क्या होगा? apostrophe S. अपॉस्ट्रोफी एस। हाँ दिस इज द रीजन। सान्विका समझ आया? सान्विका समझ आया? Yes मैम। क्या समझ आया बताओ? मैम क्योंकि मैम किसी भी वर्ड के आगे अगर हम एस ऐड नहीं करते तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। किसी भी वर्ड के आगे एस नहीं ऐड करते, नहीं। अगर हमारा जो प्लूरल है वो एस से एंड नहीं होता, जैसे मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ली, ठीक है। अभी हमारा लीफ का लीव्स था, वो एस से एंड हुआ, इसलिए केवल अपॉस्ट्रोफी लगाया। प्लूरल का रूल है। प्लूरल वर्ड्स में दो रूल्स हैं। एक, अगर एस से एंड होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगाते हैं। अगर एस से एंड नहीं होता है प्लूरल वर्ड, किसी और चीज़ से भी होता है, जैसे कोई एन से हुआ, कोई एच से हुआ, तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। समझ आया? यस मैम। पक्का? सबको समझ आया? वारेनियम समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके चलो मैं अभी आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ समझने की कि आपने ठीक लगाया है अपॉस्ट्रोफी की नहीं। ओके तो हम यहाँ पे इधर इसी असाइनमेंट में एक है अपॉस्ट्रोफी की ट्रिक। सुनो अभी मैम क्या बोल रही है। Okay, so today I'm going to show you the little known apostrophe trick. And this is just a little trick that you can do to check that you've got your apostrophes in absolutely the right place. We're talking here about possessive apostrophes. You know, those are the kind of apostrophes that show something belongs to somebody. So for example, let's keep on a topical theme. You might want to talk about the bride's dress. ओके नाउ And as you know, मेरे को ये बताओ, द ब्राइड्स ड्रेस किसकी टर्न है? वारेनियम। इस किसकी है? नहीं वारेनियम की। वारेनियम बताओ इसमें अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा? ये ड्रेस बिलोंग्स टू द ब्राइड, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा? इसके बाद, एस के बाद लगेगा? इसके पहले। दोनों में से एक ही चीज होनी है, सोच लो क्यों लगेगा? पहले। एस के पहले लगेगा, क्यों? क्यों? क्योंकि हम एक ही ड्रेस की बात कर रहे हैं, एक ड्रेस एक ही ब्राइड की होगी, तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ओके यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ तो ब्राइड्स ड्रेस। अब देखो इसमें मैम ने जो ट्रिक बताई है चेक करने के लिए कि आपने करेक्टली अपॉस्ट्रोफी लगाया है या नहीं। देखो no, the rule about possessive apostrophes says you've got to put
the apostrophe on the owner. Who owns that dress? It's the bride who owns the dress. The bride is the owner. Give the owner the apostrophe. And there she goes. The bride has the apostrophe. But here's the little trick. If you want to check, make absolutely sure that you have got that apostrophe in the right place, simply take your left hand, cover the apostrophe. What's left to the left of your left hand should be the owner. Who owns that dress? The bride owns that dress. So yep, you've got it in the right place. समझ आया ये? तो जब भी हम नहीं समझ आया, जब भी हम वर्ड लिखते हैं, अभी मैं इधर दिखाती हूँ आपको, इस पे यहाँ पे दिखा रही हूँ, हमने क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी को छुपा देना है. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे किस चीज़ से छुपाऊँ, अच्छा इससे मैं छुपाती हूँ. सपोजिंग मैंने अब अपॉस्ट्रोफी को छुपाना है, यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी छुपा दिया. तो अगर मैंने हाथ रख के छुपाया है तो इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो उसको बिलोंग करना चाहिए, वो होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने इसको छुपा दिया, तो इसके पीछे क्या है, लीव्स. तो लीव्स की ही बात कर रहे हैं प्लूरल पोजेसिव में, तो ये करेक्ट है. ओके, हमने अगर यहाँ पे छुपा दिया तो हम एक लीफ की बात कर रहे हैं, ये छुपा दिया तो किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लीफ की. तो हम अपॉस्ट्रोफी को छुपाते रहें और देखते रहें. अब टीथ, टीथ का एनामल या कोई भी सेंटेंस हम लें, तो टीथ किसको बिलोंग करता है, टीथ को. हमने इसको छुपा दिया तो इसका मतलब हमने सही जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगाया. समझ आया? मेंस, मेंस यूनिफॉर्म्स अगर हम बोल रहे हैं, किसकी यूनिफॉर्म्स है, मेंस, मतलब बहुत सारे लोगों की. तो हमने इसको छुपा दिया, इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, मेन. तो इसका मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि सब बहुत सारे आदमियों की यूनिफॉर्म्स हैं. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? समझ आया सबको? ये ट्रिक समझ आई? समझ आई ट्रिक? जो मैंने समझाया है, रूल्स तो वही हैं. सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, प्लूरल में अगर एस एंड में है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा, और अगर प्लूरल में एस नहीं है एंड में तो अपॉस्ट्रोफी एस ही लगेगा. ये सबको याद रहेगा? सबको याद रहेगा ये कि नहीं रहेगा? बोलो. आपको यस मैम. ओके, आरव आपको जल्दी है कहीं जाने की? 4:53 क्यों लिख रहे हो फिर आप? गलती से चला नहीं गया, आपने टाइप किया. आप चाह रहे हो अब क्लास बंद हो जाए? सबको समझ आ गया ना? अच्छा, म्यूट करो. ओके, तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और दिखाती हूँ आप लोगों को. यस मैम. ओके, गुड. तो एक एक्सरसाइज है, वो सब लोग खुद करेंगे और फिर उसको मैं डिस्कस अगली क्लास में करूँगी. ये एक्सरसाइज है. खुल जा सिम सिम. Why is it taking so long to open? What is wrong? Okay. So now, what do you have to do in this? Rewrite the sentences using apostrophe s or s apostrophe to show possession. तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि ये प्लूरल यूज होना चाहिए इस सेंटेंस में या सिंगुलर होना चाहिए. ट्राई डूइंग दिस एक्सरसाइज. सिर्फ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज ही करो, बाकी हम बाद में देखेंगे दूसरी एक्सरसाइज और एक और एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो और एक आध एग्जाम्पल हम कर लेते हैं. आई एम आस्किंग सान्विका, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. The wolf's teeth are very sharp. Yes.
So the wolf's teeth are very sharp. Are we talking about one wolf or more than one wolf? More than one. Plural. And it is ending in S or some other word? S. S. So where will we put the apostrophe? Before S or after S? S के बाद. Absolutely right. तो ये पूरे sentences लिख के करके भेजना. Next, Varanium, read this. Varanium, read it. जल्दी से एक एक बार सबसे. हाँ. Varanium. Here is Danny's हाँ, डैनीज आपने ठीक बोला. तो डैनीज में हम क्या क्या लगाएंगे? डैनी एक बंदा है, तो कैसे बनेगा डैनीज आंट? क्या लगाऊं? बताओ. वारेनियम, टेल मी. क्या लगाऊं इसमें? अपोस्ट्रोफी एस या एस? अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये एक ही है. ओके, सो वील से अपॉस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट, आशुतोष. The princess skin is very smooth. The princess skin is very smooth. इसमें क्या करेंगे? प्रिंसेस का प्लूरल क्या है? Princess का plural शाबाश. Do you remember? princess. Princesses स्पेलिंग क्या होती है? PRINCESS. प्रिंसेस ES. प्रिंसेसेस, ये प्लूरल होता है. पर यहाँ पे तो एक ही है, तो ये सिंगुलर है. तो इसमें क्या कैसे लगेगा? अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा या सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर प्रिंसेस. सो व्हाट शुड आई पुट हियर? Ma'am, the prince. बेटे, प्रिंसेसेस ये प्लूरल है. सिंगुलर में तो हमेशा अपॉस्ट्रोफी ऐसी लगता है. Ma'am, apostrophe लगेगा. सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा? नहीं बेटे, ये Apostrophe. अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा. प्रिंसेसेस अपॉस्ट्रोफी. इस वाले प्रिंसेसेस में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा अगर प्लूरल होता. ओके, समझे? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड? कंफ्यूज नहीं होना. ओके, समझ आया आशुतोष? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट, ऋषिता. I know Iris' father very well. हाँ, तो आइरिस एक किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो क्या होएगा इसमें? कैसे लगेगा अपॉस्ट्रोफी? बताओ. सब म्यूट करो, सिर्फ ऋषिता को बोलने दो. हाँ, बोलो. मैम, मेरे को कहीं जाना है तो मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, पर ये वाली एक्सरसाइज करना ट्राई. ओके, यू कैन लीव. ओके मैम. ओके, बाय. ओके मैम. हाँ हाँ, बताओ क्या लगेगा इसमें? Apostrophe S. हाँ, बिकॉज इट इज सिंगुलर. नाउ नेक्स्ट, आरव, रीड इट. ये थोड़ा ट्रिकी है ये वाला सेंटेंस. पढ़ो. आरव, रीड इट. That दैट इज द लिम्स कार. द लिम्स हम कब बोलेंगे? द रैनास, द लिम्स. आपका क्या सरनेम है? द सिंग्स. मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं. लिम्स. दैट इज द लिम्स कार. इसमें कैसा लगेगा? अपॉस्ट्रोफी लगेगा या अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा? प्लूरल की बात हो रही है ये. सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा. प्लूरल है क्योंकि ये, और प्लूरल जिसमें जो एस में एंड होते हैं उनमें केवल अपॉस्ट्रोफी लगता है. ओके, मैंने S apostrophe बोला. हाँ, एस अपॉस्ट्रोफी. वेरी गुड.
नेक्स्ट लास्ट, सबकी टर्न हो गई? वारेनियम की टर्न हुई? हाँ, सबकी टर्न हो गई। ओके, अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वाली असाइनमेंट में है, मैं असाइनमेंट नंबर व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, ये वाली एक्सरसाइज करना। इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं, आप लोग एक ही एक्सरसाइज करना, बट कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड सेंड इट टू मी। अगर होमवर्क मेरे को नहीं भेजोगे तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी फिर। अच्छा सान्विका, आपके कितने मार्क्स आए थे इंग्लिश में बताओ?